So class 10th student, today you are studying about the credit and types of credit, and you will also study about the self-help group. So what is credit? This you have already done in the previous class. Now you write a question. What are, start writing. What are two sources of credit? What are the two sources or two categories? Two sources of credit. Mention two sources of क्रेडिट. लोन लेने के दो सोर्स क्या क्या हैं, है ना? दो ब्रॉड कैटेगरी क्या है? व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? क्वेश्चन मार्क. मेंशन द चीफ फीचर ऑफ ईच. मेंशन द चीफ फीचर्स ऑफ ईच. Have you written the question? Repeat. Rohan, repeat करो. Ma'am, what are the two sources of credit? Mention the chief features of each. हाँ, तो लिखो. The two categories of sources of credit are the two categories of sources of credit are number one, formal sources. Number one, formal sources. Number two, informal sources. So, and write about the first one. The अभी किसके बारे में लिखेंगे? फॉर्मल सेक्टर के बारे में, फॉर्मल सोर्सेस के बारे में लिखेंगे. द चीफ फीचर्स ऑफ फॉर्मल sector loans are, the chief features of formal sector loans are number मैम one. सेक्टर या सोर्सेज? हाँ, सेक्टर भी लिख सकते हैं, सोर्सेज भी लिख सकते हैं, है ना? अगर तुम क्वेश्चन में सोर्सेज लिखे हो तो सोर्सेज ही लिखो. The two features of formal Formal sources are हाँ, formal sources of loans are number one. ma'am loans are होगा. हाँ, loans, LOANS, loans are formal sector of loans are number one. These loans generally carry a low rate of interest. These loans generally carry a low rate of interest, है ना? जैसे बैंक से या कोऑपरेटिव से कहीं से लोन लिया हमने तो उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और किसी प्राइवेट पार्टी से लिया तो अपना मनमाना लोन ये इंटरेस्ट लेता है. These loans generally carry a low rate of interest. Number two, these loans are generally secured. These loans are generally secured. Now change the paragraph. Two features are informal sources of loans are. Two features of informal sources of loans are number one, जैसे उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे उसका ठीक अपोजिट यहां लिखेंगे. नंबर वन, दीज लोन्स जनरली कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. These loans generally carry a high rate of interest. ma'am these loans के बाद Generally carry
high rate of interest, A high rate of interest. और दूसरा फिर उसी तरह से लिखोगे कि these loans are generally unsecured. These loans are generally unsecured. You have written this answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अंबिका या रितिका जो भी हो रेडी हो, आंसर पढ़ो तो क्वेश्चन के साथ. What are two sources of credit? Mention the chief features of each. The two categories of sources of credit are first informal source and second is informal source, or first is formal source. हाँ, formal और informal. And the हाँ. yes, ma'am. The chief features of formal source of loans are first, these loans generally carry a low rate of interest, and second, these loans are generally secured. The chief features of informal sources of loans are these loans generally carry a high rate of interest, and these loans are generally unsecured. होगा ना मैम, these loans are generally secure होगा ना फॉर्मल में. फॉर्मल में secured और इनफॉर्मल में unsecured. ठीक है, unsecured. हाँ, और फॉर्मल में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनफॉर्मल में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हर तरह से इनफॉर्मल सोर्स ऑफ जो लोन है ना वो बहुत ही बुरा होता है उसके लिए रूरल एरियाज में, है ना, या कहीं पर भी. और रूरल एरियाज में ज्यादा यही चलता है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन ही चलता है. क्यों? क्योंकि वो पुअर पीपल होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि बैंक में कैसे पेपर वर्क करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो उनको डिफिकल्टी मालूम होती है और वो बैंक से नहीं ले पाते और इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं. तो जो कि बहुत ही उनके लिए डेंजरस है, क्योंकि उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अनसिक्योर्ड भी है ये लोन, और इस तरह से वो डेब्ट में चले जाते हैं, है ना, पुअर पीपल. तो ये हो गया तुम्हारा लोन्स का जो टाइप्स है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस, दो हो गए. ठीक है ना. अब लिखो, व्हाई शुड द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज why should the banks and cooperative societies provide more loan facilities to the rural household in India? Provide more loan facilities to the rural in India. Why should the banks and cooperative societies provide more loan facilities to the rural households in India? Give 4 reasons. है ना, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. Why should the banks and cooperative societies provide more loan facilities to the rural household in India? Give 4 reasons. Give 4 banks and cooperative societies, SOCIETIES, societies provide more loan facilities to the rural and households in India. Give 4 reasons. Rural and households in India, question mark. Give 4 reasons. Give 4 reasons. Yes, ma'am. Give 4 reasons. The 4 reasons are, क्वेश्चन पहले समझे कि हाँ, पहले क्वेश्चन समझ लो कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो ज्यादा लोन रूरल हाउस होल्ड को देते हैं, मतलब विलेजेस में ज्यादा लोन देते हैं. तो इसके क्या कारण है?
ठीक है ना? तो लिखो द 4 reasons are number 1 farmers are very poor. Farmers are very poor. Who don't have surplus money. Farmers are very poor who don't have surplus money to invest in agriculture or any other activity. In agriculture or any other activity. इंडियन विलेजेस, इंडिया के रूरल एरियाज में क्या है कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो बहुत स्मॉल लैंड है उनके पास या लैंडलेस भी हो सकते हैं, है ना? तो इंडियन फार्मर्स ज्यादातर क्या है, बहुत पुअर है और उनके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके. तो पहला रीजन है डोंट हैव, हाँ, दे डोंट हैव सरप्लस मनी टू इन्वेस्ट. They don't have agriculture and other activities. Agriculture and other activities. Money in agriculture or other activities. Invest money to invest. Money to invest in agriculture or any other activity. Second point, in rural areas, the money lenders. Second point, in rural areas, the money lenders charge a very high rate of interest. ये मनी लेंडर इनफॉर्मल सेक्टर के होते हैं, है ना? In rural areas, the money lenders charge very high rate of interest. Which leads to debt, which leads to their THEIR, which leads to their debt, DEBT, debt and debt trap. रितिका रिपीट करो दोनों पॉइंट. Farmers are very poor who don't have surplus money to invest in agriculture and other activities. And second point is, in rural areas, the money lenders charge high rate of interest, which leads to their debt and debt trap. है ना, वो बहुत कर्ज में दब जाते हैं, है ना, और कई सालों तक उससे नहीं निकल पाते हैं. थर्ड पॉइंट, the money lenders use unfair means. The money lenders use unfair means to get their money back. The money lenders use unfair means to get their money back. इसका मीनिंग समझे? अगर कोई बहुत पुअर फार्मर है जो लोन समय पे नहीं लौटा पा रहा है, जो उसने मनी लेंडर से लिया था, तो वो मनी लेंडर बहुत मिसबिहेव करते हैं. वो उनकी घर झोपड़ी जो भी है या जो एनिमल उनके पास है, वो किसी भी चीज को उठा के ले जाएंगे. मतलब कुछ भी मिसबिहेव करते हैं मनी वापस लेने के लिए. Next point, cheap and affordable credit. Cheap and affordable credit cheap and affordable credit is must for rural development. Cheap and affordable
credit is must for rural development. अगर क्रेडिट मिलता है कन्वीनियंटली तो वो क्या है, रूरल डेवलपमेंट उसमें होगा. लास्ट के 2 पॉइंट पढ़ो. The money Ma'am, the money lenders lenders use unfair means to get their money back. Cheap and affordable credit is must for rural development. ठीक है. तो ये आंसर में तुम लोग क्या क्या पढ़े कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोन देते हैं रूरल एरियाज में, तो वो बहुत जरूरी है ये लोन प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में. क्यों जरूरी है? क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो पुअर होते हैं. रिच फार्मर्स भी हैं लेकिन पुअर फार्मर का नंबर कम नहीं है इंडिया में. तो पुअर फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, है ना, ताकि वो भी एग्रीकल्चर कर सकें, इसके लिए. फिर दूसरी बात है कि मनी लेंडर जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उससे बचने के लिए. और तीसरी बात कि मनी लेंडर्स अपना पैसा वापस लेने के लिए कुछ भी गलत स्टेप उठाते हैं तो वो उससे भी बचने के लिए. और इस तरह से अगर क्रेडिट मिलता है कन्वीनियंटली मतलब फॉर्मल सेक्टर से, तो इसमें विलेज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो है वो समझ गए तुम लोग? यस मैम. हाँ. अब देखो, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पुअर फार्मर्स जो है रूरल एरियाज में, उनको ये फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसका क्या कारण है? हाँ, ये भी क्वेश्चन कभी आ सकते हैं कि रूरल एरियाज में क्यों ये फार्मर जो है पुअर फार्मर वो हमेशा मनी लेंडर के चक्कर में पड़ जाते हैं, है ना. वो अच्छी तरह से ये नहीं ले पाते हैं लोन, ये फॉर्मल सोर्स से लोन नहीं ले पाते. मैम क्योंकि वो उतने लिटरेट नहीं होते हैं. हाँ, तो तुम ऐसे और सारे पॉइंट बताओ तो क्या क्या रीजन हो सकता है. एक लिटरेट नहीं हो सकते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है. तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ड्यू टू इलिटरेसी दे आर नॉट अवेयर विद द पेपर वर्क एंड ऑल, है ना. दूसरी बात क्या हम लिख सकते हैं कि सब जगह बैंक तो अवेलेबल है नहीं, है ना. बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. एक ये भी बड़ा कारण है क्योंकि गांव तो बहुत छोटे छोटे गांव दूर दूर में रिमोट एरियाज में है, और बैंक कहाँ पर है, तो जो नियरेस्ट टाउन है वहां पे है, या कहीं किसी विलेज में ग्रामीण बैंक भी है. तो बैंक हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है. और कुछ सोच के बताओ. तीसरा, देयर इज लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, मतलब बहुत सारे पेपर वर्क देने पड़ते हैं, है ना. कुछ जमीन का पेपर दो, कुछ कोलैटरल दो, कुछ दिखाना पड़ता है अपने प्रॉपर्टी, तब जाके बैंक लोन देता है. तो पुअर पीपल को ना ये सब नहीं रहता है पुअर पीपल के पास. तो ये इसी को हम सिक्योरिटी कहेंगे या कोलैटरल कहेंगे जो बैंक मांगता है, तो वो हम नहीं दिखा पाते हैं, पुअर पीपल नहीं दिखा पाते हैं. और कभी कभी और क्या होता है कि बैंक में ऑफिसर्स को ब्राइब भी देना पड़ता है ना. लोन ग्रांट करवाने के लिए ब्राइब भी देना पड़ जाता है, तो जो कि पुअर पीपल के लिए भी डिफिकल्ट है. तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए बताओ तो फिर से. पहला पॉइंट, अवेयरनेस. हाँ, ड्यू टू इलिटरेसी. मोस्टली द पुअर पीपल, पुअर फार्मर्स आर इलिटरेट एंड दे आर अनअवेयर to understand all these process of the formal sector of loan. Banks are not present everywhere in the rural in India. ये भी ये दूसरा पॉइंट हो गया. और there is lot of documentation required for availing loan from the banks, which is also very difficult for the poor people. ठीक है ना. लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मतलब बहुत सारा पेपर प्रोड्यूस करना पड़ता है, शो करना पड़ता है बैंक के सामने. और बैंक जो है कोलैटरल मांगता ही है. कोलैटरल मतलब कुछ सिक्योरिटी, कुछ अपना पहले का जैसे प्रॉपर्टी को शो करना पड़ता है, कुछ जमीन का पेपर दिखाओ या मकान है तो उसका पेपर दिखाओ, ये सब करना पड़ता है.
तो बैंक हमेशा सिक्योरिटी का डिमांड करती है, जो एक प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी वहां पे बैंक में बोरोवर को ऑफिसर्स को ब्राइब भी देना पड़ जाता है। बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उसको बोरोवर मतलब जो लोन लेने वाला है उसको वहां ब्राइब भी देना पड़ता है। ये सब डिफिकल्टीज है। फिर इसी से एक मिलता जुलता और भी क्वेश्चन है कि हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स। ठीक है ना, अगर पुअर फार्मर्स और वर्कर को लोन मिलता है फॉर्मल सेक्टर से मतलब फॉर्मल सोर्स से जैसे बैंक से, तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसके फायदे भी तुम अपने मन से ऐसे कुछ सोचो, लिखो, है ना, कि द फॉर्मल सेक्टर शुड इंश्योर दैट एवरीवन रिसीव्स लोन। फॉर्मल सेक्टर में हर एक लोग लोन लेने की ये कर सकते हैं, मतलब डिमांड कर सकते हैं लोन लेने का फॉर्मल सेक्टर में सभी लोग। इट शुड इंश्योर सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक लिंकेज। देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स इन रूरल एरियाज। ठीक है ना, ये सब पॉइंट है कि रूरल एरियाज में ज्यादा बैंक और कोऑपरेटिव्स होने भी चाहिए, तभी तो सबको इसका बेनिफिट उठाएगा। और जो कोलैटरल डिमांड करते हैं वो सब भी कम का होना चाहिए, तो जो पीपल है पुअर पीपल वो लोन की फैसिलिटी उठा सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं। और हम लोग को नेक्स्ट क्या करना था, आज थोड़ा सा टाइम बचा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सब रीडिंग कर लेना, वही सब जितनी बातें अभी हम लोग किए ना वो सब है। थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप का रीडिंग करने। ये थोड़ा रीडिंग कर लो इनफॉर्मल सेक्टर का, ये जो है ये पैराग्राफ। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तुमने जो अभी अपने आंसर में लिखा, and do little to increase the income of the borrowers. Thus, it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. है ना, बैंक को इतना फैसिलिटी देना चाहिए कि इनफॉर्मल सेक्टर पे गांव के लोग डिपेंड ना करें। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द फॉर द पुअर। इसको थोड़ा रीडिंग कर ले, फिर तुम लोग इसका आंसर खुद से भी लिखना, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे। इन द प्रीवियस section, we have seen that poor households are still dependent in informal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural areas. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sector. Informal sector में तो विलेजर जाते हैं मनी लेंडर के पास और उनको मनी मिल जाती है, भले ही वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, लेकिन यहाँ से लेना आसान होता है उनके लिए। As we saw for Megha, bank loans require proper document and collateral. Documents मतलब पेपर वर्क, है ना, जैसे आधार कार्ड चाहिए तो पैन कार्ड चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, उसके लिए दूसरे गारंटर चाहिए जिसका उस बैंक में अकाउंट हो। फिर कोलैटरल का मतलब हो कोई संपत्ति का पेपर प्रोड्यूस करिए, जैसे जमीन का पेपर हो, हाउस का पेपर हो, वो सब। Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loan. Okay, absence of collateral is one of the major reasons which prevent the poor from getting bank loan. Informal lenders such as money lenders, on the other hand, know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. अब मनी लेंडर तो उसी गांव के होते हैं जो कि पर्सनली उस आदमी को जान रहे हैं, तो वो ये सब कुछ डिमांड नहीं करते हैं, कोई कोलैटरल या कोई डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं चाहिए मनी लेंडर्स को। और पर्सनली वो एक दूसरे को जान रहे हैं और वो जानते हैं कि हम लोन इनको देंगे तो ये हमको लोन बैक करेंगे ही, नहीं करेंगे तो हम इनकी संपत्ति भी ले सकते हैं।
The borrowers can, if necessary, approach the money lender even without repaying their earlier loans. However, the money lenders charge very high rate of interest. ऐसा भी करते हैं कि मनी लेंडर क्या करते हैं कि पहले का लोन वो नहीं चुकाया है, दूसरा लोन मांगने लगते हैं अगर वो, तो ये फिर दे देते हैं क्योंकि ये और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर उसके ऊपर मांगेंगे. Keep no record of the transaction and harass the borrower. कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता है और बोरोवर को ये मनी लेंडर्स बहुत हरास करते हैं, है ना. In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. अब यहाँ से तुम्हारा शुरू हो रहा है कि विलेज के अंदर आपस में मिलकर के लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे तैयार कर लेते हैं. SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आपस में ही कुछ लोग मिल करके और थोड़े थोड़े मनी जमा कर करके और एक अपना ही इस तरह का कोऑपरेटिव की तरह बना लेते हैं, जिसको वहाँ लोकली क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप. The idea is to organize rural people, in particular women, into small self-help group and pool their savings. A typical SHG has 15-20 members. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग कितने मेंबर बना लेते हैं लोग, गांव के 15-20, और खास करके विमेन अपने को ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, और who meet and save regularly. वो रोज आपस में ये करके कुछ कुछ पैसे जमा करते हैं मंथली, जैसे 25 रुपीज, 100 रुपीज, एक इंडिविजुअल इतने इतने पैसा उसमें जमा करके और एक अच्छा कैपिटल तैयार हो जाता है ना. तो members can take a small loan from the group itself to meet the